Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to be talking about the Carroll rearrangement. Actually this was one of the questions that I posted on the YouTube community and I thought this is an interesting rearrangement reactions. Okay? So far what we have studied is basically the Claisen rearrangement and also the Ireland Claisen rearrangement. Actually those are the two very efficient rearrangement reactions using which we can form gamma delta unsaturated ketone starting from the beta keto allyl esters. Okay, so Claisen rearrangement, or in fact the Carroll rearrangement, is one such reaction. Okay, so in this video we are going to look what exactly is Carroll rearrangement. Okay, and what is its mechanism, and we are also going to look at the mechanism of this particular reaction which I posted on the community page. So let's start the video. So if we look at the Carroll rearrangement, as I said, basically this is nothing but this is the transformation of beta keto allyl ester into, first of all, alpha allyl beta keto carboxylic acid. Let me tell you what do you mean by beta keto allyl ester. So if we look at this, this is the alpha position, this is the beta position. So at beta position, what we have is a keto, and this is nothing but an allyl ester. Okay, and this gets converted into is this particular compound, which is what we called as, this is the alpha position. So this is what we have is an allyl group at alpha position, and at beta position what we have is a keto, and this is a carboxylic acid. Okay, so initially what we convert is basically this beta keto allyl ester into alpha allyl beta keto carboxylic acid. Now what happens, this undergoes decarboxylation, as a result of which what we end up getting is gamma delta allyl ketone. This is nothing but a gamma delta unsaturated ketone. So if we look at, this is alpha, beta, gamma, डेल्टा. So this is what we end up getting. So अगर हम पूरा का पूरा रिएक्शन के अंदर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये वाला बीटा कीटो एलाइल एस्टर प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, उसको प्रिपेयर करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स एक्चुअली. सो one of the methods is when you condense such allyl alcohols with acetoacetic esters or diketones. ठीक है, यहाँ पे हमने acetoacetic ester से यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली इस अल्कोहल ने यहाँ पे क्या किया, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस यहाँ पे इसको अटैक किया, एंड इंस्टेड ऑफ मिथाइल एस्टर ऑफ acetoacetic ester, what we end up getting is the एलाइल एस्टर. ठीक है, अंडर बेसिक कंडीशन अब आपका क्या हुआ, इसका टॉटोमराइजेशन हुआ. मतलब ये वाला जो कार्बन है, दिस अंडरगो टॉटोमराइजेशन to give this six membered, we know that जब tautomerization होता है, there is an intramolecular hydrogen bonding takes place. So as soon as this particular intermediate forms, there is a 3 sigma topic rearrangement. ठीक है, 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज गेटिंग ब्रेक, ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड आपका बन रहा है. सो बट वी विल सी हाउ मेनी carbon atoms are on either side, how many atoms that are involved in this particular rearrangement. There are 3, 1 2 3 and 1 2 3. So that is why this is 3 sigma topic rearrangement. उसके बाद आपका ये एसिड बना विच अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि हमको पता है दिस इज हमको पता है कि कीटोन की अगर बीटा पोजीशन पे एसिड हो, इट इजीली अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव यू द डिजायर्ड product. So what we have, this is at alpha position, this is at beta position. हमको पता है बीटा कीटो एसिड्स को इजीली हम डिकार्बोक्सिलेट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ ये तो इस कंडीशन के अंदर यू कैन क्लियरली सी व्हाट द टेम्परेचर्स दैट आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज 100 डिग्रीज. टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है. ठीक है, अब कंडीशंस कैन बी माइल्डर. उस केस के अंदर व्हाट डू वी टेक एडवांटेज ऑफ डायनाइनिक केमिस्ट्री. ठीक है, डायनाइनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह के बीटा कीटो एलाइल एस्टर्स, ठीक है, दीज आर नथिंग बट बीटा कीटो एलाइल एस्टर. मतलब यहाँ पर ये एस्टर है एंड हियर व्हाट वी हैव इज दिस एलाइल ग्रुप. और इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एसिडोएसिटिक एसिड का से रिएक्शन कर सकते हैं, या तो आप डाइकीटीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. ठीक है, what do you end up getting is these kind of esters. now जब आप इसके अंदर एलडीए डालते हैं, टू इक्वेलेंट्स, हमने डाइकीनाइन केमिस्ट्री पढ़ी हुई है. सो सबसे पहले आपका क्या होगा, दिस इज मोर एसिडिक. ठीक है, सो आपका कार्बिनियन यहाँ से जनरेट हो जाएगा, सेकंड आपका दूसरा इक्विवेलेंट करेगा, यहाँ से कार्बिनियन जनरेट करेगा. सो दिस इज व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग. यहाँ पर आपका क्या, इनोलेट. नाउ वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इनोलेट इज अगेन प्रॉपरली प्लेस्ड टू अंडरगो 3 sigma topic rearrangement to give you this particular कंपाउंड. और जैसे ही आप इसका एसिडिक वर्कअप करते हैं, व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इज द कीटोन हियर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हियर, जो कि डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, जिसका अगर आप CCl4 से ट्रीट करते हैं तो गिव यू दिस गामा डेल्टा
ketone. So these conditions are far better as compared to these conditions because these are much milder conditions. ठीक है. Now coming back to the questions that I asked, मैंने जैसे पूछा था वो भी बिल्कुल एक सिंपल रिएक्शन था. यहाँ पर आपको क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने एक तरह से अगर हम इसको ट्रीट करें कि दिस इज काइंड ऑफ एन एलाइलिक एल्कोहल. ठीक है, नॉट अ ट्रू एलाइलिक एल्कोहल बट दिस इज काइंड ऑफ एन एलाइलिक एल्कोहल. यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज काइंड ऑफ दिस इज अ डाइनोन. ठीक है, डाइनोन स्पीशीज. दिस इज काइंड ऑफ एन एलाइल अल्कोहल. सो इन प्रेजेंस ऑफ डीमैप एज अ बेस आपका क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ दिस वन. नाउ what happens, this undergoes tautomerization. यहाँ पे आपका क्या होता है, टॉटोमराइजेशन हो. और जैसे ही आपका टॉटोमराइजेशन हुआ वैसे मैंने क्या बोला आपका, ये दोनों के बीच में 6 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और यहाँ पर आपका क्या हुआ कि इसका 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ. उसके बाद this is what you end up getting. इसमें से what you have is this is alpha, this is beta. As soon as this beta keto acid is formed, it undergoes decarboxylation to give you this particular compound, which undergoes aromatization to give you the phenol. So that is how this particular reaction takes place. ठीक है, so इसका लॉजिकल आंसर ये था. तो अब तक हमने बात करी कैरोल रीअरेंजमेंट की, जिसके अंदर सबसे पहले आपका क्या होता है, बीटा आपका क्या होता है, ये वाला बीटा कीटो. आपका जो ये जो एस्टर्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, जब आप ट्रीट करते हैं दे अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, उसका मैकेनिज्म है ये वाला. ठीक है, सो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी, विच हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय ट्रॉस्ट. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉस्ट एलाइलेशन. इस केस में आपका क्या होता है, इस केस में जब आप पैलेडियम कैटलिस्ट डालते हैं, हमको पता है कि हमने पाई-एलाइल केमिस्ट्री पढ़ी है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका पैलेडियम यहाँ पे पाई-एलाइल कॉम्प्लेक्स बनाता है. एंड व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इज दिस कार्बोक्सिलेट एनायन. और हमको पता है कि ये कार्बोक्सिलेट एनायन क्या है, दिस इज अल्फा, अगेन दिस इज एट द बीटा पोजीशन. सो दिस अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव यू दिस इनोलेट. और अब आपका क्या होता है, ये इनोलेट दोबारा वापस आता है, अटैक्स दिस पर्टिकुलर एलाइल ग्रुप टू गिव यू द सेम गामा डेल्टा कीटोन. तो आपके पास दो रास्ते हैं. अगर आप पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी द पाथवे, और अगर आप बेस यूज करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी द पाथवे ऑफ द रिएक्शन. और ये वाला पाथवे बी है जो कि पैलेडियम कैटलाइज, दिस हैज बीन एक्सप्लोर्ड टू कैरी आउट द एसिमेट्रिक एलाइलेशन रिएक्शन. ठीक है, अब हम देख लेते हैं उसके 2-3 एग्जांपल जिससे आपको समझ आ जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द काइंड ऑफ एस्टर दैट यू हैव. ठीक है, अब जैसे ही आपने इसमें पैलेडियम कैटलिस्ट डाला और आपने कायरल लिगेंड लिए, यहाँ पे मैंने कायरल लिगेंड लिया जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R है. ठीक है, उस केस के अंदर आप क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है. ठीक है, और आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. और जब इस वाला ये वाला जो कार्बन है इस वाले उसके ऊपर कार्बन पे अटैक कर रहा है जो है, सो दैट इज हैपनिंग इन एन इनएंशियो सिलेक्टिव मैनर. ठीक है, क्योंकि इस लिगेंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री R है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी R होगी. उसका रीजन ये है कि जब पैलेडियम इस लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, पैलेडियम का सबसे पहले क्या हो रहा है कि पैलेडियम इस लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और फिर जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका डिजायर्ड आपका जो पैलेडियम कैटलिस्ट बन रहा है वो जब इस पाई-एलाइल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो इनएंशियो सिलेक्टिवली एक फेज से कोऑर्डिनेट कर रहा है. और जब इस इनोलेट का उस कैटलिस्ट उस वाले पाई-एलाइल कॉम्प्लेक्स पे अटैक हो रहा है, वो प्रेफरेबली सेम फेज से अटैक हो रहा है. सो दैट इज व्हाई यू गेट दी दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. मतलब आपका इनएंशियो सिलेक्टिव डीकार्बोक्सिलेटिव एलाइलेशन, मतलब आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और एलाइलेशन भी हो रहा है. सिमिलरली आप अगर इस तरह का कंपाउंड लेंगे तो इसके अंदर भी आप व्हाट यू आर टेकिंग इज अ पैलेडियम कैटलिस्ट अगेंस्ट अ ट्रोस्ट लिगेंड. अगेन व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई-एलाइल कॉम्प्लेक्स व्हिच इज एन इनएंशियो सिलेक्टिव पाई-एलाइल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने एक कायरल लिगेंड लिया है यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. आप इसके जो मैंने पीछे मैकेनिज्म समझाया, मैकेनिज्म एब्सोल्युटली द सेम. और उसके बाद जब एलाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन एन इनएंशियो सिलेक्टिव फैशन, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R है इसीलिए वो सेम फेज से अटैक हो रहा है. अब यहाँ पर आपका क्या, लिगेंड आपका डिफरेंट हो गया, रिएक्शन आपका बिल्कुल सेम हो रहा है. अगेन दिस इज अनदर येट अनदर एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेटिव एलाइलेशन. ठीक है, सो दिस वाज मोर और लेस अबाउट द कैरल रीअरेंजमेंट, जो कि मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताना चाहिए था. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबब्ली आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो where I will going to discuss about the transdiaxial opening, and that I'm going to teach on the blackboard. So hopefully that video will be up soon. So looking forward to come up with a video after a long time, which I'm going to describe on the which I'm going to discuss in detail on the blackboard. So okay, so if you have any doubt regarding this video, so let me know about it and send in your comments.
Thanks a lot. Have a nice day.